Hello friends, welcome to the platform of Darshanik IAS. This is Akshay Kadam. So guys, on this platform of Darshanik IAS, today we are going to discuss one important topic of ethics syllabus. So guys, in your UPSC ethics syllabus, the first syllabus part, that is philosophy segment, in which there is one topic, that is ethics and human interface, essence, determinants and consequence of ethics in human actions. So in this syllabus part, this topic, that is determinants of ethics, that is we are going to discuss. So what do we understand by the determinants of ethics? So determinants of ethics simply means, guys, what determines ethics, okay, how ethics gets developed or who develops ethics inside us, and that is basically the topic, determinants of ethics. But topic is bit not so simple as the word simply says. So guys, let's discuss this determinants of ethics, or what we mean by determinants of ethics. So guys, yesterday or in previous lectures, I have discussed with you this ethics definition, that ethics is a branch of philosophy that tells us, okay, what are good and bad ends to pursue in life. It is therefore a practical discipline whose authority in practical thought, okay, or it's a practical discipline that tells us what actions one ought to do in his life or what lifestyle one ought to live. So this is basic definition of ethics. So who teaches us this ethics? Okay, which actions are ought actions, which actions are good, which actions are bad, who tells us? So ethics is determined by an external source. Well, I told you morality, okay, comes from your own reasoning, inner voice, inner conscience. So even our ethics, virtues, morality gets developed or gets determined by some external factor. Even while defining virtues, Aristotle defined virtues as moral principles discovered by reason, acquired by practice in a community of character. So what Aristotle defining virtue as? Moral principles discovered by reason, acquired by practice in a community of character. So he is saying virtues we acquire from a community of character. And what is then community of character? From where we acquire these virtues? So we acquire virtues from a community of character, and this community of character is nothing but determinants of ethics. Okay, these factors determine our ethics. So what are these community of characters? Who are these determining factors? जिनके लिए एक दूसरा वर्ड भी है, socializing agents. Who are these socializing agents that socialize us? So there are a lot of socializing agents, guys. Family, education, schooling, textbook, media, society, culture, religion. Okay, they tell us continuously what is good, what is bad, what is right, what is moral, immoral, and eventually by getting exposed to this socializing agent, these external factors, okay, our morality, our ethics gets developed. We learn this morality, we develop this morality, virtues get inculcated inside us. Okay, and so these outside or external agencies that determine our ethics are called determinants, okay, of ethics. So now guys, while discussing the determinants of ethics, why this topic is important? So guys, I will discuss with you the determinants of ethics. There are many determinants of ethics, but how they can frame the question, or how UPSC can frame the question on this topic. Because this simple word, I told you, where we learn ethics from, where we learn morality from, where we learn virtues from. So where we learn all that from, उसी का या determinants of ethics related आपके question बन सकते हैं. UPSC can ask you that understanding origin of ethical principle or ethical properties. From where ethical principles originate, from where we acquire them, from where we learn them, or what is goodness? ये goodness होता क्या है? Who teaches us what is goodness, what is badness, what is moral, immoral? या what morality itself is? ये morality आती कहाँ से? Okay, how we get the knowledge? What is morality? What is moral? What is immoral? Where this knowledge develops from? Or do we need God for morality? Okay, do we need to be a believer in God to have a morality, or whether morality can develop without God or without existence or understanding of God? So someone is atheist, will he not be moral? So these kind of questions answer you will get in this topic of determinants of ethics.
So is God only determinant of ethics? Yeah, other than God, there are many other factors, agencies, etc. who can also determine ethics. Or same way, can morality be taught or inculcated? And in previous lectures, guys, where I discussed with you the concept of ethics, morality, I told you that yes, ethics can be taught, morality can be taught, and ethics and morality's definition, both, okay, definitions had the word practical. So ethics is a branch of philosophy, okay, which is a practical discipline. Morality is standard of right and wise conduct, whose authority in practical thought. That was the definition of morality we discussed. So both definition of ethics or morality has the word practical. And we practically learn, develop, understand morality. We develop this practically morality. So can morality be taught or inculcated? So yes, guys, morality can be taught, morality can be inculcated, developed. And who teaches us this morality is nothing but the determinants of ethics. And these determinants of ethics determine or teach us ethics, morality. We acquire this ethics, morality, and we eventually develop this ethics and morality. So from where we learn this ethics and morality, guys? So these determinants, there are many, 20-25 determinants I will discuss with you as we go ahead in our discussion. But guys, ये जो ethics है, whether we can teach ethics, whether ethics can be shaped, inculcated, ये जो सारे determinants है जो हम पे काम कर रहे हैं, socializing agents हैं, society, culture, religion, caste, nations, etc., role models, ये हमें अगर कोई चीज बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, can our morality develop? क्या morality विकसित हो सकती है? Can ethics be inculcated? Ethics be developed? Okay, so to answering this question, guys, okay, we need to debate some philosopher thinkers' opinion. So there was one legendary philosopher thinker in ethics called Immanuel Kant. We'll discuss about Immanuel Kant, or we'll discuss his idea about deontological ethics. And in deontological ethics, in detail, you will learn Kant, who is very important philosopher. So guys, what is Kant's opinion about ethics, morality, whether they can be taught, whether they can be discussed, inculcated? So guys, Immanuel Kant says, within ethics exists vast gulf between theoretical speculation and practical implementation. Point is not to speculate, but apply knowledge. So Kant का कहना क्या है कि ethics में दो branches है, theoretical ethics and a practical application of that. And there is a vast gap between the two. And if you don't bridge this gap between theoretical ethics and what can be practically implemented, practically discussed, okay, we will never be able to solve this issue, address this issue. So guys, ethics, within ethics exists vast gulf between theoretical speculation and practical implementation. Point is not to speculate, but apply knowledge. Okay, we should be able to create society which is ethical and not just be descriptive about ethical norms. So we should be able to create society which is ethical. अगर 4-5 फिलोसोफर यूनिवर्सिटी में बैठ के सिर्फ इथिक्स पे डिबेट कर रहे हैं कि इथिक्स क्या होता है, क्या नहीं होता है, इथिक्स की डेफिनेशन क्या, मोरालिटी की डेफिनेशन क्या, इथिक्स या मोरालिटी समझने के लिए भगवान में मानना जरूरी है या नहीं है, ये अगर हाई लेवल चीजें ही सिर्फ आप डिस्कस करो यूनिवर्सिटी में, बट इफ यू कांट सॉल्व डे टू डे प्रॉब्लम, इथिकल प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल्स लाइफ, if you can't teach them how to be ethical, then ethics as a subject will be useless. Then there is no point of ethics as a subject. और इसलिए इमैनुअल कांत का जो कहना है कि इथिक्स सब्जेक्ट का सबसे बड़ा पर्पज, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क दैट इथिक्स पेपर शुड डू और शुड एड्रेस, ओके, इज टू ब्रिज दिस गैप बिटवीन theoretical ethics and its practical implementation. Only when we bridge this gap and able to teach ethics practically, then only ethics subject has some utility, has some value. And so we should be able to create society which is ethical and not just debate or describe ethics क्या होता है, ethics की definition क्या, ethics की branches क्या, ethics के dimensions क्या. We should be able to teach ethics, and that's very important thing. And that's from where originate the principle of determinants of ethics. Where we learn ethics from? Okay, can ethics be taught? Or how does society culture influence ethical beliefs? Can ethics help create good individual? Can ethics be taught? So all these debates, guys,
come under the top topic of your syllabus, determinants of ethics. So फिर first question, who are the determinants of ethics? We will address that later on. But right now we just understood the significance, importance, that why it is necessary to teach ethics. Now next question is, can ethics be taught? Chalo, it is necessary, ethics should be taught. Otherwise ethics subject has no use if you can't teach people practically to be good, to be ethical, to be moral. अगर हम सोसाइटी इथिकल नहीं बना पा रहे, मोरल बना नहीं पा रहे, then what's the point of ethics subject? Okay, so ethics we should be able to teach. Yes, fine, that's necessary. But can ethics be taught? Can people learn ethics? Can people develop morality? तो उसके लिए बहुत सारे थिंकर्स के अलग अलग ओपिनियन है. तो एक थिंकर है शॉपेनहावर. Now what Schopenhauer's opinion is that it is foolish to expect ethics awakens virtuous as aesthetics might awaken the poet. In short, Schopenhauer का कहना क्या है? It is foolish to expect कि ethics पढ़ के लोग ethical बन जाए. And it is as foolish as thinking कि कोई poetry की किताब पढ़ के poet बन गया. That is not going to happen. तो शॉपेनहावर का कहना यही है सिंपल कि राजा मौली की मूवी देख देख के आप राजा मौली नहीं बनने वाले. अरिजीत सिंह के गाने सुन सुन के आप अरिजीत सिंह नहीं बनने वाले. तो सेम वे सोक्रेटिस एरिस्टोटल प्लेटो पढ़ के आप सोक्रेटिस एरिस्टोटल नहीं बनने वाले. ओके, गांधी की किताब पढ़ के आप गांधी नहीं बनने वाले. सो इथिक्स कांट बी टॉट. ओके, देयर इज अ गैप एंड इट इज फुलिश टू एक्सपेक्ट इथिक्स अवेकन्स वर्चुअस. इथिक्स पढ़ के कोई वर्चुअस बना इज एज फुलिश एज बिलीविंग दैट कोई पोएट्री पढ़ के पोएट बन गया या कोई आर्ट एग्जीबिशन को जाके आर्टिस्ट बन गया. बट चलो उसका ओपिनियन है विच इज लार्जली रिजेक्टेड आइडिया, बिकॉज देन देयर इज अ थिंकर सोक्रेटिस. और सोक्रेटिस का कहना था यस इथिक्स कैन बी टॉट. और सोक्रेटिस का क्या कहना है कि इथिक्स कंसिस्ट ऑफ नोइंग व्हाट वी ऑट टू डू एंड सच अ नॉलेज कैन बी टॉट. सो सोक्रेटिस का कहना क्या है? इथिक्स कैन बी टॉट. Ethics is just simply knowing what we ought to do and such a knowledge can be taught. तो सोक्रेटिस का इन शॉर्ट कहना क्या है कि इथिक्स में आपको राजा मौली की मूवी देख देख के राजा मौली नहीं बनना, लेकिन आप राजा मौली की मूवी देख देख के इतना तो समझ में आने लगा कि बॉलीवुड कितने घटिया मूवी बना रहा है. दैट्स इनफ. तो सेम वे इथिक्स पढ़ पढ़ के आपको सोक्रेटिस बनने की जरूरी नहीं, या इथिक्स पढ़ पढ़ के आप एरिस्टोटल बने कोई जरूरत नहीं. लेकिन सोक्रेटिस एरिस्टोटल के थॉट्स पढ़ के अगर आपको इतना भी समझ में आने लगा लाइफ में व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, दैट्स इनफ. आप खुद फिलोसोफर नहीं बने तो भी चलेगा, बट आपको अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग मोरालिटी का आ जाता है, इथिक्स का आ जाता है, दैट्स इनफ. और इथिक्स का पेपर उतना ही करे. तो अरिजीत सिंह के गाने सुन सुन के अरिजीत सिंह ना बनो, लेकिन अरिजीत सिंह के गाने सुन सुन के इफ यू कुड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन गुड म्यूजिक एंड बैड म्यूजिक, दैट इज इनफ. तो सेम वे सोक्रेटिस का कहना है ethics is simply means knowing what we ought to do, knowing what is good and bad, knowing what is moral and immoral, knowing what is ethical and unethical, and that much of simple knowledge can be taught, okay, to a society. And by teaching this simple knowledge, gradually, slowly, we can move towards more ethical society, more moral society. So yes, ethics can be taught as per the Socrates opinion. Then same way there was one philosopher Protagoras. Protagoras का कहना था that sons of good people can turn out bad and the sons of bad people can turn out good. That means ethics can be taught. अब ये बहुत सारे थिंकर फिलोसोफर गाइस आप इथिक्स के पेपर में पढ़ोगे, एंड आई टोल्ड यू इन यूपीएससी सिलेबस डिस्कशन और स्ट्रैटेजी डिस्कशन जो लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड किए पहले, यू चेक दोज रिकॉर्डिंग्स वेयर आई हैव मेंशन द पॉइंट दैट इथिक्स के पेपर में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम यू शुड बी एबल टू हैव अप्लाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दोज कंसेप्ट्स. क्योंकि आधा पेपर आपके केस स्टडीज है एंड यू शुड बी गुड एट नोइंग हाउ टू सॉल्व दोज केस स्टडीज. एंड सो आपका जो इथिक्स का पेपर है, बेसिक थियरीज आप पढ़ रहे हो, कंसेप्ट पढ़ रहे हो, स्टार्ट टू लिंक देम विथ योर डे टू डे लाइफ, विथ योर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस. सो प्रोटैगोरस का ये जो स्टेटमेंट है, सन्स ऑफ गुड पीपल कैन टर्न आउट बैड एंड सन्स ऑफ बैड पीपल कैन टर्न आउट गुड, यू कैन लिंक इट विथ योर सराउंडिंग. तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम ये चीज देखते हैं, देन यू कैन जीरो ऑन द स्टोरी ऑफ भक्त प्रहलाद एंड हिरण्यकश्यप.
So this story of Bhakta Prahlad and Hiranyakashyap, that Hiranyakashyap's son can be a great devotee or Bhakta Prahlad. So sons of good people can turn out bad and sons of bad people can turn out good. या सेम वे रावणा का एक भाई विभीषण था. सो वन वॉज इमोरल, वन वॉज मोरल. सो एक ही घर में दो ऐसे लोग हो सकते हैं. दैट मीन्स इथिक्स कैन बी टॉट. ओके, सो sons of good people can turn out bad and sons of bad people can turn out good. That means ethics can be taught and we can create good people, good society. And same way, और जनरली आप जो भी इथिक्स के आंसर लिख रहे हो, लार्जली इंडियन थिंकर्स को और इंडियन एग्जाम्पल्स को कोट करना. जहां नहीं है पॉसिबल तो आप वेस्टर्न एग्जाम्पल या दूसरे एग्जाम्पल भी दे सकते हो. और लार्जली एथिक्स आंसर्स में एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल पहले देने के वो अवेलेबल नहीं, तो कोई माइथोलॉजी, हिस्ट्री के एग्जाम्पल आप लिख सकते हो. तो कैन इथिक्स बी टॉट, तो उसमें अगर आप मुझे पूछोगे कौन से आंसर अगर आप लिखते, इफ यू राइट दिस आंसर, देन आई विल राइट एग्जाम्पल ऑफ अंगुलीमाल. ओके, सो अंगुलीमाल गाइज is a very important character in Buddhist history. So Angulimal was a serial ruthless killer who turned and became the Buddhist monk. ये जो स्टोरी है अंगुलीमाल की, that teaches us or tells us that ethics can be taught, ethics can be inculcated, ethics can be developed. तो आपको पता होगा अंगुलीमाल का एक जंगल था और अंगुलीमाल बचपन से ही was hated or never got the love from a mankind, love from the society, and he grown up hating the mankind. पूरा वो मिसैंथ्रोप बना, हेटर ऑफ मैनकाइंड, और वो जंगल में चला गया और उस जंगल में कोई भी आया, ही यूज्ड टू मर्डर पीपल. एक दिन बुद्धा के पास वो बात पहुंच गई एंड बुद्धा डिसाइडेड टू सॉल्व हिज इशू एंड बुद्धा वेंट एंड स्टार्टेड टू वॉक इन अंगुलीमाल जंगल. अब अंगुलीमाल के जंगल में कोई आदमी आने से भी डरता था, कोई आ जाए ही यूज्ड टू मर्डर देम. बट बुद्धा वॉज वॉकिंग और कमिंग इन हिज जंगल, वॉकिंग डीप इन टू हिज टेरिटरी without any fear or so on. Now Angulimal got confused whether he is armed or not, how he is walking so fearlessly, how he is entering my territory, my forest. तो अंगुलीमाल ने काफी वेट किया ये देखने के लिए कोई बुद्धा को फॉलो कर रहा है, कोई सोल्जर्स पीछे आ रहे हैं, ये भी कंफर्म किया. अब जब कंफर्म हुआ कि ही इज टोटली अनआर्म, अनइक्विप, कोई पीछे से आ भी नहीं रहा, देन and one point when Buddha was deep in jungle, Angulimal went with his axe to attack Buddha. बाकी लोग अंगुलीमाल को उसका वो फॉर्म देख के डरावना रूप यूज टू रन अवे, बट बुद्धा was totally calm and composed in calm and composed pose, extremely equipoised, स्थितप्रज्ञ. Buddha did not ran or scream or etc. He was just standing still. Angulimal also got confused, ये क्या हो रहा है, why he is not running away, or why he is not screaming for his life or trying to run to save his life. So उसको भी थोड़ा confusion हुआ. आज तक उसने ऐसे लोग देखे थे जो जान बचाने के लिए भागते थे उसे देख के. So he decided to then ask Buddha कि who is he, why he is not getting scared of me. तो जब अंगुलीमाल ने पूछा और ऐसे बिना डरे कैसे मेरे जंगल में आ रहे हो, कौन हो तुम, क्या नाम है, तो बुद्धा ने कहा कि लोग मुझे भगवान बुद्ध के नाम से जानते हैं, बुलाते हैं. तो अंगुलीमाल ने कुछ तो सुना था दैट देयर इज समवन, गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध, कोई महान योगी है और सो ऑन. तो फिर उसको लगा कि कोई इतना बड़ा आदमी है, सो लेट्स वेट, फर्स्ट विल डिस्कस, फिर देखते हैं मारना नहीं मारना. और फिर उन दोनों में बातचीत होने लगी. अब बुद्धिज्म के हम जो बात करते हैं कि बुद्धा के 3 फैसेट्स थे पर्सनैलिटी के, एक पद्मपानी बुद्धा, वज्रपानी बुद्धा, मंजूश्री बुद्धा. तो पद्मपानी बुद्धा दैट रिप्रेजेंट कंपैशनेट साइड ऑफ बुद्धा, वज्रपानी दैट इज थंडर, एंड मंजूश्री दैट इज ट्रांसीडेंटल विजडम. तो मंजूश्री बुद्धा बुद्धा का नॉलेज एस्पेक्ट रिप्रेजेंट करता है, वज्रपानी बुद्धा का पावर, एंड पद्मपानी बुद्धा का कंपैशन. तो बुद्धा बहुत कंपैशनेट नेचर से बात कर रहे थे अंगुलीमाल से. ऐसा बात करने वाला, इतना कंपैशन या प्यार से कोई बात करने वाला आदमी ही कभी जिंदगी में बुद्धा ने या अंगुलीमाल ने देखा नहीं था, या कोई मिला नहीं था अंगुलीमाल को. एक फादरली लव दैट ही फाउंड और सॉ इन बुद्धा, एंड ही वाज टोटली, ये कंपैशनेट की फीलिंग ही उसके लिए अननेचुरल थी.
and he totally got overwhelmed with emotions and finally collapsed at the feet of Buddha. और बुद्धा से काफी डिस्कशन करने के बाद he realized what wrongs he has done, and Buddha asked him that come with me, okay, I will teach you or I will make you my disciple and I will help you improve your life, improve standard of your life. तो फिर अंगुलीमाल ने आगे बुद्धा को कहा कि ओके आई विल कम विथ यू, आई विल फॉलो योर पाथ, लेकिन मैंने इतने लोगों को मर्डर किए, इतने लोगों में किसी का भाई बेटा बाप इतने लोग मारे हैं मैंने, दिस पीपल विल हेट मी और ट्रिमेंडसली दे हेट मी. राजाओं के मुझ पे अवार्ड्स है कि अंगुलीमाल की को अगर कोई मारता है इतना रिवॉर्ड दिया जाएगा एक्सेट्रा, वो लोग मुझे पकड़ के मार देंगे. तो बुद्धा ने बोला डोंट वरी, When I declare you as my disciple, कोई राजा तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा, कोई लोग कुछ नहीं करेंगे. When I declare you as my monk or disciple. तो फिर अंगुलीमाल ने कहा ठीक है, लेकिन अगर मैं आपका डिसाइपल और मॉन्क बन भी गया, कोई मुझे मार नहीं देगा, लेकिन लोग मुझे कभी प्यार नहीं करेंगे, मैंने इतने खून खराबा किया है. मैं किसी के घर में गया, वो कोई भिक्षा नहीं देगा, वो मुझे अपने गांव में आने भी नहीं देंगे, बहुत घृणा या तिरस्कार करेंगे मेरा. तो उस पर बुद्धा का रिप्लाई था that you will have to suffer, that I can't do away with. तुमने जो भी पाप किए उसका फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा. I can't wash out your sins. All I can teach you here by if you become my disciple, कि यहां से आगे तुमसे ये फिर से ऐसे पाप कैसे ना हो, how to control your evil impulses and develop morally, यही चीज मैं तुम्हें सिखा सकता हूं. आगे तुम अपनी जिंदगी कैसे सुधारो, बट यहां से पहले जो भी तुमने कर्म किए उसका फल तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा. सो व्हाट बुद्धा वाज टेलिंग अंगुलीमाल, दैट डजंट मैटर व्हाट योर लास्ट और प्रीवियस लाइफ इज, आई विल टीच यू टू बी इथिकल, मोरल, एंड हाउ यू कैन इंक्रीज और रेज द स्टैंडर्ड ऑफ योर लाइफ. एंड दिस अंगुलीमाल स्टोरी वेयर अ serial ruthless killer became a Buddhist monk that shows that ethics can be taught. So Angulimal, ruthless serial killer who is redeemed by sincere conversion to Buddhism, he is seen as an example of redemptive power of Buddhist teaching or power of a Buddhist ethics to cause your spiritual progress, cause your moral development. Okay, doesn't matter what's your background is, what your caste, class, religion is, everyone can develop his morality and everyone's morality can increase, evolve. So you can quote Angulimal's story to justify that yes, ethics can be taught, ethics can be developed. So why we need to teach ethics? First important part. Then can it be taught? वो डिबेट हमने कर ली. तो फिर डिटरमिन ऑफ इथिक्स में थर्ड पार्ट है गाइस, व्हाट आर द डिटरमिन्स ऑफ इथिक्स. देन कैसे ये पढ़ाया जाता है मोरालिटी इथिक्स, या मोरालिटी इथिक्स कैसे डेवलप होती है. सो उसके लिए बहुत सारे डिटरमिनेंट्स हैं दैट आई विल डिस्कस विथ यू. बट वाई टीचिंग इथिक्स इज इंपॉर्टेंट? ओके, क्योंकि अगर हम ये नहीं कर पाए कितने बड़े डिजास्टर हो सकते हैं. सो एजुकेशन इज नॉट मेमोराइजिंग दैट हिटलर किल्ड 6 million Jews. Education is understanding how millions of ordinary Germans were convinced that it was required. Education is learning how to spot the signs of history repeating itself. तो पॉइंट क्या बोल रहा है कि एजुकेशन का काम ये नहीं ये पढ़ाना कि हिटलर ने 6 या 60 लाख लोग मारे, 6 मिलियन लोग मारे. एजुकेशन का काम ये भी है कि लोगों को ये सिखाओ कि जब ये 60 लाख लोगों का कत्लेआम हो रहा था, जूस, बच्चों को, बूढ़ों को, सबको जो हिटलर मार रहा था कॉन्सेंट्रेशन कैंप में, बाकी लोग कैसे अलाउ कर रहे थे, कैसे होने दे रहे थे, बाकी जर्मन्स को उसने कैसे कन्विंस किया कि जूस को मारना सही है. हाउ ही मैनिपुलेटेड मीडिया, हाउ ही रैन प्रोपागेंडा, हाउ ही कंट्रोल्ड मीडिया, ओके, हाउ ही यूज्ड ऑल द ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी, ओके, टू गेट दिस थिंग्स डन. और ये कैसे वो कर पाया, ये सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही चीज सीख के अगर फिर से किसी कंट्री में कोई ऐसा ही डिक्टेटर फिर से वही प्रोपागेंडा, ये सारी चीजें यूज करके सोसाइटी में हेट्रेड पैदा करके, इफ ही इज टॉर्चरिंग और ट्रीटिंग द माइनॉरिटीज इन द सेम मैनर, तो वो चीज आगे रोकने में हम सक्सीड हो पाए. और इसी के लिए गाइस इथिक्स सिखाना इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू टीच इथिक्स. सो फिर ये जो इथिक्स सिखाना है, या कहां से हम इथिक्स सीखते हैं, तो उसके लिए गाइस बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स है, एंड ऑल दिस डिटर्मिनेंट्स
टीच अस इथिक्स। अब इसमें गाइज अंडरस्टैंड कि इथिक्स, इसमें दो एक डिबेट है। दीज आर द फैक्टर सोशलाइजिंग एजेंट्स हु टीच इथिक्स, डेवलप इथिक्स इन अस। लेकिन अब चलो इन सारे एजेंट्स को हम एक्सपोज हो गए और हम सही चीजें गलत चीजें समझ रहे हैं, तो आपकी मोरालिटी कितने लेवल पे डेवलप होगी, कितनी ज्यादा ग्रो करेगी। तो गाइज मोरालिटी कितनी डेवलप होती है, मोरल डेवलपमेंट की स्टेजेस होती है। तो एक थ्योरी है मोरल डेवलपमेंट की जिसमें देयर आर 6 स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो मोरालिटी डेवलप्स इन 6 स्टेजेस। तो ये जो मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है, वेयर मोरालिटी डेवलप्स इन 6 स्टेजेस, वो मैं अलग से डिस्कस करूंगा अपने दार्शनिक आईएएस के मेरे ऐप पे, वेयर आई विल लॉन्च द फुल कोर्स ऑफ इथिक्स। काफी टेक्निकल ये है, स्टेजेस है मोरल डेवलपमेंट के। जैसे साइकोलॉजी में बहुत सारी थ्योरीज होती है, एरिक्सन के आइडेंटिटी डेवलपमेंट, देन आपके लैंग्वेज डेवलपमेंट एटसेट्रा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आईक्यू डेवलपमेंट, अलग अलग थ्योरीज है। तो सेम वे आपके मोरालिटी डेवलपमेंट की भी एक थ्योरी है जिसमें 6 स्टेजेस में मोरालिटी डेवलप होती है। 6 स्टेज बीइंग द हाईएस्ट स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट, द स्टेजेस दैट दोज ग्रेट फिलोसोफर थिंकर्स लाइक बुद्धा, महावीरा, कांत, गांधी, अंबेडकर, ओके, these people reached, this is the highest stage of moral development। तो ये जो 6 स्टेज कंसिडर्ड हाईएस्ट, तो ये स्टेजेस कैसे काम करते हैं दैट विल डिस्कस इन सेपरेटली इन आवर क्लासेस। बट नेक्स्ट पॉइंट इज कि ये जो स्टेजेस डेवलप हो रही है, अपनी मोरालिटी कितनी ज्यादा डेवलप हो रही है वो अलग बात है, लेकिन ये मोरालिटी हम में डेवलप कौन करवाता है, हु आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ इथिक्स। सो देयर आर मल्टीपल डिटरमिनेंट्स ऑफ इथिक्स विच आर ऑल्सो नोन एज सोशलाइजिंग एजेंट्स। और गाइज इथिक्स में आपको कोई भी क्वेश्चन आए, वेयर यू लर्न इथिक्स फ्रॉम, वेयर यू लर्न मोरालिटी फ्रॉम, वेयर यू लर्न वैल्यूज फ्रॉम, वेयर यू लर्न वर्च्यूज फ्रॉम, वेयर यू लर्न एटीट्यूड्स फ्रॉम, वेयर यू लर्न इमोशनल इंटेलिजेंस फ्रॉम, वेयर यू लर्न स्टीरियोटाइप्स फ्रॉम, वेयर यू लर्न प्रेजुडिसेस फ्रॉम, कोई भी क्वेश्चन आता है गाइज, ये जो चार्ट है या ऐसे 2 चार्ट है, ओके, ये 2 चार्ट आपको याद रखने हैं एंड यू हैव टू कोड देम बिकॉज दिस इज ऑल where we learn ethics, morality, virtue, stereotype, prejudice, attitude, values, emotional intelligence, everything। हाँ, लेकिन गाइज एटीट्यूड फॉर्मेशन कहां से होता है, ये 2 चार्ट आप आंसर में लिख सकते हो, लेकिन एटीट्यूड फॉर्मेशन की कोर थ्योरीज है, 12-13 कोर थ्योरीज है, वो आपको पहले लिखनी है। अगर वो नहीं याद आती तो आप ये चार्ट का सहारा ले सकते हो, लेकिन एटीट्यूड फॉर्मेशन की कोर थ्योरीज है क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशन लर्निंग, कॉग्निटिव डिसोनेंस, सेल्फ परसेप्शन थ्योरी, पर्सुएसिव टेक्निक, कॉग्निटिव एंड इमोशनल अपील, रैशनल फियर अपील एटसेट्रा। तो वो कोर थ्योरीज आपको कोट करनी है, यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। लेकिन इन जनरल अगर आपको वो याद नहीं आ रहा तो फिर आप ये भी चार्ट लिख सकते हो। सो ये जो चार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, आई कॉल इट एज अ लाइफ लाइन ऑफ यूपीएससी, लाइफ लाइन ऑफ इथिक्स पेपर, लाइफ लाइन ऑफ एसए पेपर, हर जगह पे। तो ये क्यों लाइफ लाइन है उसके लिए मैं एक अलग रिकॉर्डिंग करूंगा एसए रिलेटेड, जहां पे मैं वो चीज एक्सप्लेन करूंगा, डिटेल में ये चार्ट एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी सिर्फ इतना याद रखना, वेयर वी लर्न इथिक्स फ्रॉम, वेयर वी लर्न मोरालिटी फ्रॉम, सो दीज आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ इथिक्स। ओके, सो फर्स्ट बायोलॉजी, रेस, एज, जेंडर, हॉर्मोन्स, जेनेटिक्स, इंस्टिंक्ट्स। अब हाउ दे शेप इथिक्स, मोरालिटी, दैट आई विल एक्सप्लेन यू इन सेपरेट क्लास, सेपरेट लेक्चर। लेकिन यस, बायोलॉजी ऑल्सो प्लेज रोल इन आवर इथिक्स एंड मोरालिटी, वो भी एक डिटरमिनेंट है। कोई बच्चा जो सेरिब्रल पाल्सी, डाउन सिंड्रोम, ऑटिज्म का पेशेंट है, देन वो बच्चे से आप कोई इथिकल मोरल डेवलपमेंट के एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। ओके, इसलिए एक बेसिक बायोलॉजिकल प्रोसेस, एक बेसिक आईक्यू का होना ये बहुत जरूरी है मोरालिटी डेवलपमेंट के लिए। ओके, तो आपको गांधी भी समझना है गाइस। तो गांधी की आइडियाज इतनी हाई लेवल है, स्वराज, विलेज रिपब्लिक, 7 सोशल सिंस, ऑल दिस आइडियाज, कि व्हाट्सएप ग्रेजुएट का काम नहीं है ये चीजें समझना। सो टू अंडरस्टैंड गांधी ऑल्सो यू नीड बेसिक आईक्यू। तो इथिक्स मोरालिटी के अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए एक बेसिक डिटरमिनेंट है आपका बायोलॉजी, ओके, जेनेटिक इंस्टिंक्ट डेवलपमेंट। उसके अलावा हु डिटरमाइंस इथिक्स, देन दैट इज योर फैमिली, पेरेंट, चाइल्ड रिंग प्रैक्टिसेस, ओके, मदर, फादर, दे आर द वेरी स्ट्रॉन्ग सोशलाइजिंग एजेंट। उसके बाद एजुकेशन, स्कूलिंग, टेक्स्ट बुक, ये भी एक सोशलाइजिंग एजेंट है। देन आपके पीयर ग्रुप्स, आपके फ्रेंड सर्कल, वो भी बहुत मेजर डिटरमाइनिंग फैक्टर है। लाइक निर्भया के गैंगरेप केस में वो 4-5 वो लड़कों ने मिलके जिस तरह से उसको टॉर्चर किया, दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू गेट कम अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ रॉन्ग पीयर ग्रुप, एंड दैट्स हाउ यू विल डेवलप आइदर मोरालिटी और इमोरालिटी। देन आपका मीडिया, सो यू हैव प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यू हैव सोशल नेटवर्किंग, एंटरटेनमेंट, एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री,
इनका भी बहुत सारा इन्फ्लुएंस है। बहुत सारे चीजें हम मीडिया से सीखते हैं। मीडिया क्रिएट्स लॉट ऑफ रोल मॉडल्स फॉर अस, और वो रोल मॉडल को एक्सपोज होके भी बहुत सारी चीजें हम एक्वायर कर रहे हैं। सेम वे वी वॉच मूवीज, बॉलीवुड के मूवीज, उसमें जो चीजें दिखाई जा रही है उससे भी मोरालिटी इथिक्स डेवलप हो रहा है या यू खराब हो रहा है। तो आइटम सॉन्ग्स एक्सेट्रा, इनका जो इम्पैक्ट है सोसाइटी पे, फेमिनिज्म पे, विमेंस के का जो ऑब्जेक्टिफिकेशन चल रहा है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ विमेंस बॉडी, ये जो चल रहा है, और इसके वजह से जो विमेन की तरफ व्यू पॉइंट लोगों का चेंज हो रहा है, दैट इज आपका मीडिया का इन्फ्लुएंस। सेम वे गाइज, ओके, साइकोलॉजी, आपकी इंडिविजुअल साइकोलॉजी भी मीडिएट करती है। आपका इमोशनल डेवलपमेंट कितना है, आपकी पर्सनैलिटी कितनी वेल डेवलप है, स्टेबल है, ओके, आपकी वैल्यू सिस्टम कितनी डेवलप है, ओरिएंटल वैल्यू, ऑक्सीडेंटल वैल्यू, कितने लिबरल वैल्यू सिस्टम के हो, कितने कॉन्जर्वेटिव हो, तो ये वैल्यू सिस्टम डेवलपमेंट भी इंटरमीडिएट करता है। देन आपके एटीट्यूड, स्टीरियोटाइप्स, प्रिजुडाइसेस, आपके अंदर कितने स्टीरियोटाइप्स है, प्रिजुडाइसेस है, ओके, कितने आप न्यूट्रल हो, एटसेट्रा। तो ये भी चीजें डिटरमाइन करेंगी कि आप में कितना इथिकल डेवलपमेंट होगा, मोरल डेवलपमेंट होगा, या वो हैम्पर होगा। इसके अलावा एक्वायरिंग फिलोसॉफिकल नॉलेज। अब आप जो ये इथिक्स का कोर्स कंप्लीट करोगे, ओके, 100 घंटे जब हम इथिक्स डिस्कस करेंगे क्लास में डिटेल में, तो ये सीखते सीखते ही गाइस खुद का भी बहुत सारा मोरल डेवलपमेंट होता है। यू लर्न अबाउट लीजेंडरी थिंकर्स लाइक गांधी, कांत, जेरेमी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल, प्लेटो, सोक्रेटिस, बुद्धा, महावीरा, उनके बहुत ऑसम कंसेप्ट्स, आइडियाज आप सीखोगे। और ये सीख सीखते गाइस आपको अलग अलग चीजों के फिलोसॉफिकल अजम्पशन समझ में आएंगे, मोरल रीजनिंग आपका डेवलप होगा। तो ये फिलोसॉफी पढ़ के भी आपका इथिक्स डेवलप हो रहा है, मोरालिटी डेवलप हो रहा है, तो वो भी एक इथिकल डिटर्मिनेंट है। उसके अलावा गाइस टेक्नोलॉजी भी इथिक्स डिटरमाइन करता है, टेक्नोलॉजी भी मोरालिटी डिटरमाइन करता है। अब टेक्नोलॉजी और इथिक्स का क्या रिलेशन है? सो सिंपल एग्जांपल, बाद में मैं जो मेरे एसे के क्लासेस लेता हूं उसमें मैं टेक्नोलॉजी एंड फेमिनाइजेशन पे पूरा एक एसे डिस्कस करता हूं। आई थिंक यूपीएससी विल आस्क वन एसे ऑन टेक्नोलॉजी फेमिनाइजेशन वन डे, वेरी हॉट टॉपिक दैट यूपीएससी हैजंट कवर्ड येट। तो जब भी मैं वो टॉपिक डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी जस्ट टू गिव यू वन सिंपल एग्जांपल ऑफ हाउ टेक्नोलॉजी कैन डिटरमाइन दिस इथिक्स मोरालिटी रिलेटेड इश्यूज ऑल्सो। तो गाइज दिस इशू दैट इज गोइंग ऑन इन इंडिया, फीमेल्स इन कॉम्बैट रोल। अब ये जो इशू चल रहा है फीमेल इन कॉम्बैट रोल, ये इशू गाइज पहले क्यों नहीं था? 1000 साल पहले, 500 साल पहले, क्योंकि 1500 साल पहले अगर कॉम्बैट बैटल करना है आपको, तो आपको एक घोड़े पे बैठ के 3-4 किलो की तलवार एक हाथ में लेके, दूसरे हाथ में 2-4 किलो की ढाल लेके बैटल फील्ड में लड़ने जाना है, हॉर्स राइडिंग करते। इट वॉज ऑल पावर, यूज ऑफ मसल पावर, एंड दैट्स व्हाई फीमेल कुडंट फाइट। लेकिन आज गाइज जब टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई, द रोल ऑफ मसल पावर हैज बीन रिड्यूस्ड बाय द टेक्नोलॉजी। ओके, यू जस्ट पुल द ट्रिगर, बंदूक की गोली अपना काम करेगी, यू प्रेस द बटन, मिसाइल अपना काम करेगा। सो वॉरफेयर टुडे इज लेस मसल पावर, मोर इंटेलेक्चुअल पावर, एंड दैट्स व्हाई गाइज, ओके, व्हेन दिस टेक्नोलॉजी रिड्यूस्ड रोल ऑफ मसल पावर फ्रॉम द बैटलफील्ड, ये इशू फिर आने लगा दैट फीमेल कैन ऑल्सो फाइट, एंड फीमेल स्टार्टेड टू आस्क फॉर अ राइट टू बी अपॉइंटेड इन परमानेंट कमीशन इन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक्सेट्रा। और वो सुप्रीम कोर्ट तक केस गई, सुप्रीम कोर्ट सपोर्टेड देयर डिमांड, और नेवी एयरफोर्स में तो ऑलरेडी फीमेल्स आर देयर इन कम्बैट रोल। इवन सीआरपीएफ की एक ऑल फीमेल बटालियन भी है, एंड सून आर्मी में भी यू विल फाइंड मोर फीमेल्स इन अ कम्बैट रोल। सो टेक्नोलॉजी कैन ऑल्सो शेप इथिक्स। सेम वे आपका सोसाइटी, कल्चर, रिलीजन, इससे भी बहुत सारे इथिक्स सीख रहे हैं। हम रामायण महाभारत की स्टोरीज पढ़ते हैं, सुनते हैं, उससे बहुत सारा हमारा लर्निंग होता है। सोसाइटी के बहुत सारे हमारे नॉर्म होते हैं, कल्चर के नॉर्म्स होते हैं, उससे ये सारी चीजें हम सीखते हैं, मोरालिटी इथिक्स। सो दे आर ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग डिटरमाइनिंग फैक्टर्स। अब गाइज इसमें सोसाइटी अलग होता है, कल्चर अलग है, रिलीजन अलग है, तीनों चीजें कंसेप्चुअली अलग है। तो उनका क्या डिफरेंस है ये अभी नहीं बता सकता मैं। व्हेन वी विल डिस्कस दिस चार्ट अगेन इन डिटेल on our application platform, so there I will explain you this concept, society, culture, religion के क्या क्या comparisons है। इसके अलावा भी गाइस बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स है that determines our morality, that is your constitutional values, fundamental values, DPSPs, fundamental duties, then आपके legal factor, judicial factor, laws etc। फिर उसके बाद administrative factor like implementation issues, red tapeism। तो ये ब्यूरोक्रेटिक के जो इश्यूज है या ब्यूरोक्रेसी भी आपकी वैल्यू सिस्टम शेप कर सकता है। जैसे नेहरू ने इंडिया की डेमोक्रेसी नर्चर की, डेमोक्रेसी शेप की, और सेम में ब्यूरोक्रेसी या कोई पॉलिटिशियन डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। इट कैन हैपन बोथ वे।
तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज या एडमिनिस्ट्रेशन कैन शेप द इथिक्स, डेवलप इथिक्स, शेप मोरालिटी. देन पॉलिटिकल फैक्टर्स ऑल्सो कम्स अंडर दैट. ओके, जैसे हिटलर ने जो किया जूस के साथ वॉज अ पॉलिटिकल मैनिपुलेशन. सो पॉलिटिक्स विथ प्रिंसिपल बहुत जरूरी है. तो गांधी ने जब 7 सोशल सिंस की बात की थी उसमें एक था पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल इज सिन. और हम जो प्लेटो ने जो एक आइडिया दी थी फिलोसोफर किंग, कि राजा कैसा होना चाहिए, फिलोसोफर जैसा, जिसको हम इंडिया के लैंग्वेज में बोलते हैं राज ऋषि. राजा कैसा होना चाहिए, ऋषि जैसा. तो गवर्नेंस अच्छा होगा, इथिकल होगा. और उसका जो एक एग्जांपल मैं इंडिया का देता हूं, द ओनली किंग इन इंडिया जो 3-4 हजार साल की हिस्ट्री में अकेला ऐसा एग्जांपल मिलता है राज ऋषि का, दैट इज शिवाजी महाराज. तो गाइज 3000 साल की हिस्ट्री में दुनिया में इतने राजा महाराजा हुए, सबके पास इतनी एम्पायर थी, पावर थी, मिलिट्री थी. ओके, बहुत बड़े बड़े पूरे हिंदुस्तान पे राज किया. लेकिन कितने राजा ऐसे हैं जिनको आज भी भगवानों जैसा पूजा जाता है या भगवानों का दर्जा मिला. महाराष्ट्र के हर घर घर में आपको शिवाजी महाराज की वर्शिप होती दिखेगी. तो अकेला ऐसा राजा हु गॉट वर्शिप एज अ गॉड बिकॉज ही वॉज दैट काइंड ऑफ पर्सन, राज ऋषि, श्रीमान योगी. उनके लिए जो मराठी में एक पोएम में वर्ड है कि श्रीमान द जेंटलमैन हु वाज लाइक अ योगी. दिस इज व्हाट प्लेटो वाज सेइंग कि फिलोसोफर किंग, राजा ऋषि जैसा हो, फिलोसोफर किंग फिलोसोफर हो, देन देयर विल बी इथिकल गवर्नेंस. तो पॉलिटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, डिटरमाइनिंग फैक्टर है इथिक्स में. फिर आपका एनवायरमेंट, क्लाइमेट या आपका ज्योग्राफी, ये भी शेप करता है इथिक्स, मोरालिटी. तो वेदर यू विल शुड बी वेजिटेरियन और यू विल बी नॉन वेजिटेरियन, लार्जली रिलीजियंस में ज्योग्राफी प्लेड द रोल. इंडिया विच इज ट्रॉपिकल कंट्री, जहां पे बहुत ज्यादा वेजिटेरियन फूड, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स अवेलेबल थे. ओके, डिबेटिंग दिस वीगन मूवमेंट वॉज पॉसिबल. बट मिडल ईस्ट, यूरोप में या तो डेजर्ट या कोल्ड टेम्परेचर जहां पे स्नोफॉल हो रहा है, यू कैंट हैव लग्जरियंट वेजिटेशन, वेजिटेबल एंड फ्रूट सप्लाई, मिल्क सप्लाई. तो वीगन मूवमेंट कुडंट बी और वोंट बी वर्किंग देयर. एंड दैट्स वाई वहां पे जो रिलीजन पैदा हो गए, वहां पे नॉनवेज मत खाओ, ये डिबेट कभी हो ही नहीं पाई. या ये डिबेट हो भी जाती तो रिलीजन वुड हैव एंडेड देन एंड देयर. उसका स्प्रेड ही नहीं होता, या पॉपुलेशन जो वो रिलीजन फॉलो करती वुड हैव डाइड आउट ऑफ हंगर एंड अदर इश्यूज. एंड दैट्स वाई योर ज्योग्राफी, एनवायरमेंट ऑल्सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली शेप्स द मोरालिटी. फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स, ये भी मोरालिटी शेप करते हैं. बिजनेस इथिक्स, हमारा यूपीएससी सिलेबस में एक टॉपिक है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बिजनेस इथिक्स, जहां पे मैं काफी आपको डिटेल में डिबेट करूंगा डिफरेंट टॉपिक्स की. टाटास कोड ऑफ कंडक्ट रूल, टाटास कोड ऑफ इथिक्स पॉलिसी. देन बहुत सारे दूसरे भी इश्यूज है लाइक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, थर्ड पार्टी इथिक्स, देन सीएसआर के कॉन्सेप्ट. तो हर ऑर्गेनाइजेशन भी अपने रूल्स बनाती है और उससे खुद को गवर्न करती है. तो उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको काम करना है, देन यू विल हैव टू फॉलो दोज इथिकल रूल्स ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. और इसलिए ओके, ऑर्गेनाइजेशनल इथिक्स, बिजनेस इथिक्स भी हमारी मोरालिटी शेप करता है, इथिक्स शेप करता है. देन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए एनवायरमेंट के साथ. देन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, हिस्ट्री में आपके साथ क्या क्या हुआ वो भी डिटरमाइन करता है इथिक्स, मोरालिटी. ओके, 200 साल पहले इंडिया में देर वॉज राजा राम मोहन राय, देर वॉज महात्मा फुले, देर वॉज सावित्रीबाई फुले. और ये लोग थे, इन्होंने जो विमेन रिफॉर्म की मूवमेंट चालू की, फेमिनिज्म की मूवमेंट चालू की. ओके, सावित्रीबाई फुले इंडिया फर्स्ट फीमेल टीचर. और ये जो फेमिनिज्म की मूवमेंट या लोअर कास्ट को एजुकेट करने की मूवमेंट, ये सावित्रीबाई और महात्मा फुले ने जो चालू की, इसी का कल्मिनेशन है 200 साल बाद. ओके, वी हैव सच ए इगैलिटेरियन सोसाइटी और विमेन एम्पावर्ड फीमेल्स, या ये जो सारा फेमिनिज्म या एजुकेशन फीमेल को दिया जा रहा है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस. ओके, व्हाट हैपन इन हिस्ट्री विथ अस. तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव और एस्पेक्ट भी बहुत मैटर करते हैं. एक देश का फादर ऑफ नेशन कितना सिग्निफिकेंट या इंपॉर्टेंट होता है, दैट डिपेंड्स. ओके, और अगर वो फादर ऑफ नेशन अगर रॉन्ग हो जाए तो कितना डिजास्टर भी हो सकता है, ये आपको पाकिस्तान से पता चलेगा. सो वी हैड गांधी एंड दैट्स व्हाई वी हैड सच अ ग्रेट डेमोक्रेसी. ओके, द वैल्यूज दैट गांधी टॉट अस, ओके, हाउ टू वर्शिप और हाउ टू रिस्पेक्ट लॉज, हाउ टू रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन. कोई भी चीज सत्याग्रह से करो, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से करो, ये जो चीज सिखाई इंडिया को गांधी ने, दैट्स व्हाई आवर डेमोक्रेसी टू अ स्टेज वी हैव इवॉल्व्ड.
and see the Pakistan where Jinnah laid the foundation of nation on violence, और आज जो पाकिस्तान is in a problematic stage. तो आपके हिस्ट्री में भी ओके व्हाट नेशन बिल्डर्स योर कंट्री प्रोड्यूस्ड, व्हाट सोशल रिफॉर्मर्स फिलोसोफर कंट्री प्रोड्यूस्ड, ये भी शेप करता है ओके इथिक्स मोरालिटी का डेवलपमेंट. तो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी एस्पेक्ट है इंपॉर्टेंट. देन इंटरनेशनल फैक्टर ग्लोबलाइजेशन, आज ग्लोबलाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट फैक्टर है. वी आर गेटिंग एक्सपोज टू ग्लोबलाइजेशन. या ब्रिटिश जब इंडिया में आए एंड इंट्रोड्यूस वेस्टर्न एजुकेशन, वो भी एक ग्लोबलाइजेशन का एग्जाम्पल था. और अब पोस्ट एलपीजी रिफॉर्म्स, ये ग्लोबलाइजेशन काफी स्ट्रांगली हो रहा है. और उसके साथ ग्लोबलाइजेशन के साथ जो वेस्टर्न वैल्यूज आ रही है, ऑक्सीडेंटल वैल्यूज दैट वी आर लर्निंग, आवर इथिक्स मोरालिटी आल्सो गेटिंग शेप्ड बाय इन्फ्लुएंस ऑफ दिस वेस्टर्न वैल्यूज. और उसी के साथ गाइज आपका इकोनॉमी, सर्वे, बजट, ओके, ये भी चीजें बहुत शेप करता है. आपकी इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, आपकी इकोनॉमी की लेवल क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, ओके, ये भी आपके डायरेक्टली इनडायरेक्टली इथिक्स मोरालिटी शेप करता है. सो गाइज, आप अगर कोई लाइक केनिया, सोमालिया जैसी कंट्री हो जहां पे लोगों को खाने पीने की भी चीजें नहीं है, यू कैन एक्सपेक्ट देम हाई लेवल ऑफ इथिकल मोरल डेवलपमेंट. आपकी बेसिक नीड्स, नेसेसिटी भी सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी होता है फॉर इथिकल मोरल डेवलपमेंट. एंड दैट्स व्हाई गाइज इकोनॉमिक सर्वे या इकोनॉमी फैक्टर इन जनरल, ओके, वो. और जब हम एडमिनिस्ट्रेशन के एंगल से सोचेंगे तो इकोनॉमिक सर्वे, बजट, पॉलिसीज ये भी मैटर करती है मोरालिटी में. जैसे सुकन्या कन्या योजना एक इथिक्स की स्कीम, ओके, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो स्कीम्स हमने लॉन्च की, इकोनॉमिक पॉलिसीज लॉन्च की, ओके, विमेन लोगों के व्यू पॉइंट हमने चेंज किए टुवर्ड्स गर्ल चाइल्ड. और उसके वजह से आज जो हम 21st सेंचुरी, एज ऑफ नाउ वी स्पीक and as we stand in the classroom, there are more girls than boys today in Indian population. ये इसी पॉलिसीज का बाय प्रोडक्ट आउटकम है. तो इकोनॉमिक्स भी इज अ डिटर्मिनिंग फैक्टर. तो ऑलमोस्ट आपको मैंने 20-25 डिटर्मिनेंट्स बता दिए वेयर वी लर्न इथिक्स फ्रॉम. सो इसको और डिटेल में आई विल डिस्कस इन माय ऐप और क्लासरूम्स. और ये चार्ट कैसे यूज करना आंसर राइटिंग में, केस स्टडीज में, इवन एसेज में, ये भी मैं डिस्कस करूंगा वहीं पे मेरे दार्शनिक IAS के ऐप पे. सो यू आर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर बिकमिंग मोर इथिकल देन द सोसाइटी यू ग्रू अप इन. ओके, सिंपल आपको इस तरह से कोई कोट आता है इथिक्स के पेपर में और आगे लिखा जाएगा एक्सप्लेन. तो अभी जो भी मैंने डिस्कशन किया उसको यूज करके यू कैन ट्राई राइटिंग आंसर टू दिस क्वेश्चन. ओके, इन माई क्लासरूम आई विल डिस्कस दिस स्टेटमेंट एंड बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स और उनके आंसर कैसे फ्रेम करना, आंसर कैसे लिखना, दैट आंसर राइटिंग पार्ट आई विल डिस्कस देयर. सो दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइज. थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू माय दार्शनिक IAS app where you will get more recordings. You can check those recordings also. Even I am uploading shorts, reels for your GK purpose, general knowledge purpose for from prelims perspective. तो उस शॉर्ट्स में भी, रील्स में मैं बहुत सारा नॉलेज आपको दे रहा हूँ जो नॉर्मल टॉपिक्स में कवर नहीं होता, थोड़ी हटके वाले करंट अफेयर की न्यूज़ कंटेंट्स. सो वो भी चेकआउट करना, दे विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प फॉर यू. एंड स्टे ट्यून्ड और ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल UPSC Ethics 4 where to download these notes, PDF, etc. You can download from Telegram and on my Darshanik IAS app. Okay, stay tuned for my essay and ethics lectures. So thanks for listening guys and see you soon.